ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، تفصیلی خبروں سے پہلے آج کی 3 بڑی خبریں۔ دنیائی کرکٹ کا بڑا ٹاکرا، شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ چاہے کچھ ہو جائے دفاعی ایٹمی پروگرام جاری رہے گا۔ بانی نے کہہ دیا مذاکرات کا ٹائم فریم تو ہونا ہی چاہیے۔ تھا جس کا انتظار وہ شیڈیول آ گیا۔ آئی سی سی نے پاکستانی فارمولا تسلیم کرتے ہوئے چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول جاری کر دیا۔ میگا ایونٹ کا آغاز 19 فروری کو کراچی میں ہوگا۔ میچز 9 مارچ تک پاکستان اور یو اے ای میں کھیلے جائیں گے۔ پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ پہلا سیمی فائنل دبئی اور دوسرا لاہور میں ہوگا۔ بھارت فائنل میں نہ پہنچا تو حتمی ٹاکرا لاہور میں کھیلا جائے گا۔ کس میں ہے کتنا دم، دبئی میں پڑے گا گھمسان کا رن۔ 23 فروری کی ڈیٹ مارک کر لیں۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر جھپٹیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی پر طویل انتظار کا ہوا دی اینڈ۔ آئی سی سی نے باقاعدہ شیڈیول جاری کر دیا۔ 19 فروری سے 9 مارچ تک میدان سجے گا۔ میچز کراچی، راولپنڈی، لاہور اور دبئی میں ہوں گے۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش شامل۔ جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، افغانستان اور انگلینڈ گروپ بی میں موجود۔ کراچی میں افتتاحی ٹاکرا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ بھارت اپنے تمام گروپ میچز دبئی میں کھیلے گا۔ پہلا سیمی فائنل 4 مارچ کو دبئی اور دوسرا 5 مارچ کو لاہور میں ہوگا۔ بھارت فائنل میں نہ پہنچا تو حتمی ٹاکرا لاہور میں کھیلا جائے گا۔ بھارت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کھیل کی ساکھ کو قربان کیا گیا۔ برطانوی جریدے ٹیلی گراف کی بھارتی بورڈ اور آئی سی سی کو آئینہ دکھا دیا۔ لکھا کھیلوں کی دنیا میں بھارتی اثر و رسوخ کی مثال نہیں ملتی۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بھی بھارتی مفادات کا خیال رکھا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی پر بھارتی حد درمی، برطانوی جریدے سیاست کو بے نقاب کر دیا۔ آئی سی سی کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جینٹل مین گیم کرکٹ میں بھارت کی اجارہ داری ہے۔ بھارت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کھیل کی ساکھ کو قربان کیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 پر بھارتی مفادات کا خیال رکھا گیا۔ آئی سی سی کے ہر ایونٹ میں بھارت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بھی لکھا بھارت دوسرے ملک کو فائنل کی میزبانی سے کیسے روک سکتا ہے۔ 4 مارچ تک کسی ٹیم کو علم نہیں ہوگا کہ فائنل کہاں ہونا ہے۔ بھارت فائنل میں پہنچا تو فائنل دبئی ورنہ لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ شامل کریں گے خبریں سیاسی منظرنامے سے، بات کریں گے وفاقی کابینہ اجلاس کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دفاعی ایٹمی پروگرام پر امریکی پابندیاں مسترد کر دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے واضح کیا پاکستان کے خلاف مذموم سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھی پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی قرار دے دی۔ دباؤ مسترد، ڈکٹیشن نامنظور، پاکستان نے 2 ٹوک جواب دے دیا۔ وفاقی کابینہ کا امریکی پابندیاں خاطر میں نہ لانے کا فیصلہ۔ شہباز شریف نے صاف کہا جوہری پروگرام پر نو سمجھوتا، دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا نظام جارحیت نہیں، دفاع کے لیے ہے، مذموم سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا جہاں پر ہمارا جو نیوکلیر جو سسٹم ہے وہ اگریسو ہو۔ اٹ از جسٹ ڈیٹرنس، نتھنگ ایلس۔ اٹس اے پروگرام ٹو ڈیفینڈ پاکستان۔ اس کے اوپر کوئی قطعاً کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہی موقف ترجمان دفتر خارجہ نے بھی اپنایا، واضح کیا پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ملک کی سیکیورٹی کا فیصلہ قوم کرے گی، امریکی پابندیوں سے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر فرق نہیں پڑے گا۔ خطے میں میزائل سسٹم اور جوہری ٹیکنالوجی کی دوڑ بھارت نے شروع کی، بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ مذاکرات میں ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں، مذاکرات کی کامیابی کے لیے وزیر اعظم پر امید۔ ساتھ ہی کہا کہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو پارا چنار کے حالات پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں۔ اس کو سامنے رکھ کر اگر یہ گفتگو شنید ہوگی تو یقیناً اس سے ملک کے اندر ایک سکون آئے گا۔ کسی کی نیت کو شک نہیں کرتا، مجھے پوری امید ہے کہ یہ دونوں پارٹی جو ہیں مل کر کوئی ایسا حل نکالیں گے جس سے کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں اگر ہم فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ملک و قوم کو بے پناہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اسلام آباد پر چڑھائی کی جا رہی تھی، کاش یہ وسائل، یہ وقت
ये तवानाई पारा चनार में इसको ख़त्म करने के लिए अगर सूबाई हुकूमत सर्फ करती तो शायद नुकसान इतना ज़्यादा ना होता। अब रुख करते हैं ज़िला कुरम का, जहां अमन अमान की सूरत हाल मामूल पर ना सकी। कुरम को दीगर अजला से मिलाने वाली मरकज़ी शाहराह 77 रोज़ से बंद है। इलाके में अद्वियात, पेट्रोल, LPG समेत दीगर अशिया खुरोनोश का शदीद फुकदान है, जिससे शहरी फाकों पर मजबूर हैं। अपर कुरम की 4 लाख की आबादी महसूर होकर रह गई है। रास्तों की बंदिश और बदअमनी के खिलाफ कुरम के मकीनों का कुरम प्रेस क्लब के बाहर सख्त सर्दी में एहतजाजी धरना 5वें रोज़ भी जारी है। बानी PTI से वकला की टीम ने आज अडियाला जेल में मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर, काजी अनवर फैसल चौधरी और खालिद यूसुफ शामिल थे। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने हामिद रजा को मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर करने की हिदायत दे दी। फैसल चौधरी ने हामिद रजा को तर्जुमान मुकर्रर करने की तस्दीक कर दी। बानी से मुलाकात हुई तो बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि बानी को मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया गया। बानी ने कहा मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी से सिविल नाफरमानी पर बात नहीं हुई। खान साहब से मुलाकात हुई है, आधे घंटे की मुलाकात हुई, आज फैमिली की भी मुलाकात, और खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। हम अपना इंशाल्लाह चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारे मुतालिबात है वो रखेंगे हुकूमत के सामने, कमेटी के सामने हम उनको रखेंगे और इस पर आगे की बढ़ेंगे। और उम्मीद होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अब एक सारे मसाइल का एक हल ज़रूर निकल आए। नहीं, इस पर बात नहीं हुई तो खान साहब की वो है, उस पर बात नहीं हुई है। इंटरनेशनल हमने डिस्कस नहीं किया, अलबत्ता खान साहब की हिदायत यही है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है या फॉरेन वर्ड से रिलेटेड है उस पर कोई बात नहीं करेंगे सिवाय चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और इंफॉर्मेशन सब। PTI मुज़ाकराती कमेटी कल बानी से मुलाकात करेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि जल्द तब्दीली आने वाली है। उमर अयूब बोले मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद है। हुकूमत से मुज़ाकरात, क्या करनी है बात, कौन कौन से होंगे मुतालबात, क्या क्या होने चाहिए इकदामात। तहरीक इंसाफ ने प्लान की तैयारी तेज कर दी। मुज़ाकराती कमेटी बुध को बानी PTI से मिलेगी। मुज़ाकराती कमेटी को अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत मिल गई। ज़राए के मुताबिक कमेटी इब्तदाई मुज़ाकरात पर ब्रीफ करेगी। 2 जनवरी को अली अमीन गंडापुर भी बैठक का हिस्सा बनेंगे। वजीर आला करम से मुतल्लिक इजलास के बाइस पहले दौर में शामिल नहीं थे। साहबजादा हामिद रजा मुज़ाकराती कमेटी के ऑफिशियल तर्जुमान होंगे। साबिक सदर आसिफ अलवी ने जल्द बड़ी तब्दीली का दावा कर दिया। कहा हुक्मरानों के दिन अब गिने चुने हैं। जुल्म और ज्यादती की दुनिया है, मगर बदलेगा, बदल रहा है। ये पाकिस्तान के अच्छाई के सितारे आपस में कॉन्फ्लुएंस में आ गए। 1-1.5 महीने से ज्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे, जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमजोर कर दिया। उमर अयूब ने मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद जाहिर कर दी। जो हुकूमत या अपने आप को ये कहते हैं कि हम लोग खुद मुक़्तदर हैं, हम लोग फैसले करेंगे, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सामने नजर आ जाएगा। असद कैसर बोले बानी की रिहाई के मुतालबे का मकसद रियायत मांगना नहीं। इमरान खान और जितनी भी हमारी लीडरशिप है वर्कर, उनको रिहा किया जाए। रिहाई का मतलब नहीं है कि हम कोई रियायत मांग रहे हैं, क्योंकि एक इलीगल इंतकाम की बुनियाद पे इन्होंने ये सारी केसेस बनाए हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मुज़ाकरात के पहले दौर में बानी PTI ने मुतालबात पेश किए। अगले दौर में तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मुज़ाकरात हुकूमत के साथ। आज न्यूज़ पेशावर के रिपोर्टर लाइबा हुसैन के सवाल पर असद कैसर का कहा, बोले हमारी जालिम और मजलूम की लड़ाई है। सर ये बताइएगा कि असल लड़ाई आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, मुज़ाकरात आप हुकूमत के साथ कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों मुज़ाकरात नहीं करते? बहुत अच्छे सवाल किए हैं और आपका जो है ना माशाल्लाह ये बहुत इसका जवाब है कि देखिए हमारा है जुल्म के खिलाफ जंग, हम इंसाफ चाहते हैं, जो जालिम और मजलूम की जो लड़ाई है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के बाद अब अमेरिका की भी पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत। फौजी अदालत और सिविलियंस की सजाओं पर तशवीश का इजहार कर दिया। एक्स पर पैगाम में तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। पाकिस्तान से शफाफ ट्रायल और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं।
अदालती खबर शामिल करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइनी तरमीम गैर आइनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है। 26वीं तरमीम से आइन की अहम खसूसियात, अदलिया की आज़ादी और बुनियादी इक़्तिदार ख़त्म हो गई। इस्तदा की 26वीं तरमीम को गैर आइनी करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। ज़िलाई सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में पीपल्स पार्टी से मुशावरत पर इत्तेफाक किया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के मामलात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वाज़ेह कर दे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुदाखलत पर कई अमूर पर इत्तफाक कर लिया गया। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। बिलावल भुट्टो जरदारी का IBS अखर के कॉन्वोकेशन से खिताब। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। कि इस वक्त अगर दुनिया में जो 10 ममालिक सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं उनमें से एक पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अवाम का ये कसूर नहीं है। और बैनुल-अक़वामी जो ताकतवर ममालिक हैं, ये जो दुनिया आज भुगत रहे हैं, ये आपका कसूर है। इन्होंने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन चलाने के लिए, अपना कैपिटलिस्ट ग्रीड को खिलाने के लिए पूरी दुनिया की जो एनवायरनमेंट है उसको खराब कर दिया है। वेलकम बैक। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में घर से बेहोशी की हालत में मिलने वाले 6 अफराद से एक शख्स जान बहक हो गया। 1.5 माह के बच्चे को होश आ गया है। पुलिस का ये कहना है कमरे में धुआं भी मौजूद था। शमील अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी लाशारी पाड़े के घर में अफसोसनाक वाकया। 6 अफराद बेहोश पाए गए। 60 साल शाहीन दम तोड़ गया। तमाम अफराद मुबैना तौर पर रात मुश्तबा खाना खाकर सोए और सुबह बेहोशी और मुर्दा पाए गए। बेहोश होने वालों में 19 साल रुबीना, 23 साल फारूक, 17 साल उमैर, 16 साल नुमान और 2 माह का अंजिला शामिल है। मुतासरा अफराद जिन्हें अस्पताल लाए गए तो बद इंतजामी ने इस्तकबाल किया। मरीजों के तीमारदार स्ट्रेचर के लिए आपस में लड़ते दिखाई दिए। इंचार्ज शोबा हादसा जिना अस्पताल डॉक्टर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले एक शख्स का इंतकाल हो चुका था। बेहोश अफराद के खून के नमूने टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। हमारे पास 4 पेशेंट हमें रिसीव हुए। 3 मर्द में से एक ब्रॉड डेड आया था, वो डेथ ही उसको लेके आए थे। हिस्ट्री उनसे जो सस्पेक्टेड ली हमने तो उसमें यही हमने डायग्नोसिस बनाया कि वो एक सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है हमारे पास। अभी हमने उनके जो हैं वो ब्लड टेस्ट भिजवा दिए हैं। पुलिस हर पहलू से वाक़े की तहकीकात में मसरूफ है। अहले मोहल्ला के मुताबिक सुबह घर का दरवाजा खटखटाया तो ना खोलने पर पड़ोसी अंदर गए तो मकीन बेहोश थे। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर हमना निसार के साथ शमील अहमद, आज न्यूज़, कराची। जराइम से जुड़ी मजीद खबरें शामिल करेंगे। रुक करेंगे कोटा दूगा, जहां पड़ोसी की फायरिंग से नौजवान जामहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। मुलजिम तारिक झगड़े के दौरान बीवी को तशद्दुद का निशाना बना रहा था। पड़ोसी इरफान ने बीच बचाव की कोशिश की। मुलजिम ने तैश में आकर गोली मार दी। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब कुछ मौसम पर बात करें तो मुल्क में सर्दी मजीद शिद्दत पकड़ गई है। बालाई इलाकों में बर्फबारी तो रुक गई, बारिश भी थम गई, मगर ठंड बढ़ गई है। बिल्कुल, दरिया हो, झीलें हो, आबशारें हो, सब जम गई हैं। शिमाली बलूचिस्तान में भी जाड़े ने धूम मचाई है। कराची में साइबेरिया की हवाएं राज करने लगी। मुल्क कोल्ड वेव की लपेट में, दरिया झीलें जम गई, लोग सर्दी से ठिठर गए। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान से निकल गया, मगर पीछे ठंड ही ठंड छोड़ गया। मरी और गलियात में बर्फबारी रुक गई। ग्रेस वैली में सर्दी के बाइस दरियाए नीलम जम गया। गजर में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। झीलों और आबशारों का पानी बर्फ में बदल गया। कराची में साइबेरियन हवाएं साए साए करने लगी। रात का टेम्परेचर 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
आज और कल तो विंडी वेदर रहेगा, कोल्ड, ड्राई एंड विंडी। कराची में भी जो एक हमारा स्टैंडर्ड स्टेशन है उस पर 9.2 तक एक दिन गया है, परसों या तरसों, एक दिन 9.2, एक दिन 9.5। आज भी सबसे ज्यादा सर्दी लिया और स्कर्दू में पड़ी, पारा -9 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर, गिलगित, गोपिस -7 की सर्दी में जम गए। कोयटा -6, हुंजा, कल्लात में पारा -5 तक गिरा। दीर और कलाम में कम से कम दर्जे हरारत -4 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 6, मरी -1, पेशावर में पारा 2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम पर तफसीली रिपोर्ट तो आपने देखी, अब ब्रेक के बाद देखिए। एबटाबाद का गोरा कब्रिस्तान। वेलकम बैक। मुहाजिर कल्चर डे पर बात करेंगे। शहर कायद में मुहाजिर कल्चर डे रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस में सकाफती दिन पर तकरीब सजाई गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने खिताब में कहा, गवर्नर हाउस में तमाम सकाफतों के दिन मनाए जाते हैं। मुहाजिर कल्चर डे पहली मरतबा गवर्नर हाउस में मनाया जा रहा है। एबटाबाद में तारीखी गोरा कब्रिस्तान और सेंट लॉस चर्च आज भी ताज बरतानिया के दौर की याद दिलाता है। शाहिद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मेजर जेम्स एबट के नाम पर आबाद शहर एबटाबाद, अंग्रेज दौर में तामीर इमारतें आज भी एबटाबाद की पहचान हैं। मेजर जेम्स एबट ने 1853 में गोरा कब्रिस्तान और सेंट लोकस चर्च तामीर कराया, जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। पत्थर और लकड़ी से बनाया गया चर्च आज भी फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। चर्च की खास बात यह है कि इसकी तामीर में सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, दालों, अंडों और लकड़ी के बुरादे से दीवारों को लेपा गया है। इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसमें पत्थर लगा हुआ है और अंदर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर मिट्टी है और ये अभी भी मिट्टी का ही है, अंदर से बाहर से पत्थर है। गोरा कब्रिस्तान में जनरल रिचमॉन्ड बाटे और थॉमस ली समेत बहुत सी मशहूर शख्सियात की कब्रें मौजूद हैं। 19वीं सदी में वबाई अमराज से मरने वाले बच्चे भी यहीं मदफन हैं। चर्च की तामीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख कम्युनिटी ने भरपूर ताउन किया। तारीखी इमारतें एबटाबाद की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। वेलकम बैक। सूरज से कम तरीन फासले पर पहुंचने की रिकॉर्ड कोशिश। नासा के स्पेस क्राफ्ट सूरज के करीब जाएगा। तहकीकाती खलाई जहाज स्पार्क सोलर जमीन के बैरूनी मदार से निकलेगा। खलाई जहाज को सूरज के सबसे ज्यादा करीब पहुंचने का तजुर्बा और सबसे ज्यादा तपिश का सामना होगा। स्पार्क सोलर से साइंसदानों का राबता कई रोज से मुनक़ता है। उन्हें अब 28 दिसंबर को एक सिग्नल का इंतजार है। अगर ये मौसूल ना हुआ तो जहाज को तबाह समझा जाएगा। क्रिसमस की तैयारियों के साथ आज 9 बजे अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज़।